So today our topic is sequence of functions. In this we are going to study pointwise convergence, uniform convergence and some theorems. तो आई होप आप लोगों को कन्वर्जेंस एंड पॉइंट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस जो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लासेस में ऑफ सीक्वेंसेस एंड सीरीज, तो वो आपको याद होगा. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस. In last classes what we have studied, uniform convergence of sequence of numbers. तो यही लिखा होगा इसमें भी इंट्रोडक्शंस में. यू आर फैमिलियर विद सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स इन ब्लॉक 2 में आपने स्टडी करी है. यू हैव स्टडीड देयर कन्वर्जेंस कैरेक्टरिस्टिक. In this unit we are going to introduce you sequence of functions which is straightforward generalization of sequence of real numbers. Okay, जो है जनरल फॉर्म. Once you are familiar with the idea, we shall talk about the convergence of these sequence also. We shall be using the concept discussed in block 2 to study the sequence of functions. So it will be good idea to go back and revise the definition and major theorems of the units of block 2. ठीक है. ब्लॉक 2 में आप ऑलरेडी बढ़ चुके हैं कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस. वहाँ जो सीक्वेंस होती थी वो नंबर्स की होती थी. ठीक है, तो वही लिखा है कि बेटर है ये, क्योंकि जनरल पोर्शन है उसका, तो बेटर है कि एक बार आप वहाँ जाके उन सबको रिवाइज कर लें. तो आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा. उन सबको रिवाइज करने का तरीका आपको पता ही है. जो ब्लॉक 2 की सारे यूनिट्स की वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखी है, तो आप वहाँ से उन वीडियोस को देख करके कंसेप्ट को समझ सकते हैं. ओके. इन 17.2 we will discuss the concept of sequence of real numbers. Okay. In section 17.3 we shall define another type of convergence of sequence of functions known as uniform convergence. Okay. We shall explain how it is different from pointwise convergence. In 17.2 we will study pointwise convergence, and in 17.3 we are going to study uniform convergence. In section 17.4, properties such as continuity are preserved by uniform convergence. Okay, continuity. We are going to discuss the continuity are preserved by uniform convergence means some theorem. Objective. After study, what will you understood? You will understood the definition of pointwise limit of sequence of functions. ठीक है, pointwise limits of a sequence of functions. Decide whether a given sequence of function is pointwise convergent or not. Uniform limit of a sequence of functions. Show that the uniform limit of a sequence of continuous differentiable integrable functions is continuous differentiable integrable. तो ये आप सब लोग पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहला टॉपिक पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस. What is the pointwise convergence? In this section we consider a generalization of sequence of real numbers, namely sequence of real valued function. It is a sequence each of whose term is real valued function. We discuss the basic form of the convergence of these sequence known as pointwise convergence. To understand the sequence of functions, we consider a geometrical sequence with which you are already familiar. तो अब तक इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है, याद करो सीक्वेंस क्या होती थी. कोई एग्जांपल दो मुझे सीक्वेंस. है किसी के पास सीक्वेंस का फॉर्म? याद है किसी को? सीक्वेंस का कोई एग्जांपल दे सकता है मुझे? याद करो, ये होती थी सीक्वेंस. इज इक्वल टू, इसमें कौन से एलिमेंट होते थे? 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड सो ऑन. समझ में आ गई? याद आया कुछ या नहीं आया? बताओ, बोलो. तभी पढ़ाने में और पढ़ने में मजा आता है. इट्स क्लियर?
जागो भाई जागो। हम्म। कौन है? योगेश कुमार, अभिजीत, अश्वनी? हाँ बताइए। ये समझ में आया सीक्वेंस, नहीं आया? हम्म। हाँ बोलिए। कोई बात नहीं, वो भी एक सीक्वेंस है। मैंने ये वाला ले लिया, आपने ये ले लेना है। इक्वल टू 1 2 3, ये भी एक सीक्वेंस है। ठीक है, कुछ भी ले लो, वो तो मैंने एक एग्जांपल दिया। ओके। तो ये आप ब्लॉक ब्लॉक नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। अब लास्ट ब्लॉक में आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरीके के, 1 अपॉन, सॉरी, वो है Fi इज इक्वल टू, उसमें क्या है, F1, F2, F3, F4 एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस है जहाँ F1 F2 F3 F4 क्या है, ये फंक्शंस हैं। जैसे आपने कह दिया F1 x इज इक्वल टू 1, ये पहला फंक्शन हो। ठीक है, आपने बोल दिया F2 x इज इक्वल टू 1/2, ये दूसरा फंक्शन हो गया। F3 x इज इक्वल टू 1/, या फिर आपके मन है जो भी आप बोलना चाहिए, ये ना दे के एंड सो ऑन, आपका मन है ये भी दे सकते हो। F1 x इज इक्वल टू 1, ये यही रखो फिलहाल, वरना कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने फंक्शन डिफाइन कर देने हैं। तो इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे, तो ये जनरलाइजेशन है। वहाँ क्या था सीक्वेंस में, नंबर्स। यहाँ क्या है सीक्वेंस के अंदर, फंक्शंस। To understand the sequence of function, we consider the geometrical sequence with which you are already familiar. Let, let x belongs to R. For each n belongs to n, let us consider a function fn defined by on R by fn x is equal to x to the power n. ठीक है, इन्होंने क्या करा, देखो एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, एफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन। तो आपका क्या बन गया, एफ वन एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ टू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ थ्री एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो आपके पास जो सीक्वेंस आपको बनानी थी, सीक्वेंस क्या बन गई आपके पास, सीक्वेंस एफ एन एक्स इज इक्वल टू एफ वन, एफ टू, एफ थ्री एंड सो ऑन। यानी कि सीक्वेंस क्या बन गई, एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू फंक्शन के रूप में। ठीक है, पॉइंट नोट करना, फंक्शन के रूप में ये। ठीक है, ये सीक्वेंस देखो ये लिखा, एफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन। तो एफ वन एक्स हो गया एक्स, एफ टू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, एफ थ्री एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स एन। Thus we have sequence of functions given by f1 f2 fn which is denoted by x। समझ में आ गई बात, जो वही जो मैंने यहाँ पर लिखा है, तो ये आपकी सीक्वेंस बन गई। Suppose that x belongs to R, say x equal to 0, then we have f1 0 is equal to 0, f2 0 is equal to 0. We get the sequence 0 0 0 of real number. Similarly,
When we put 1 by 2, we get the sequence 1 by 2, 1 by 4, 1 by 8, and for x equal to 1, we get the constant sequence 1, 1, 1. Hence, by evaluating the function in given sequence at each point of the domain, we get sequence of real numbers. We can also talk about the convergence of the given sequence of functions. The definition of convergence is closely linked to the convergence of the sequences of real numbers generated. Before we write the definition, we give some examples to make you familiar with the idea of the sequence of. समझ में आई बात क्या है? फिर से एक बार बताऊं. सीक्वेंस ऑफ फंक्शन. ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सीक्वेंस ऑफ फंक्शन. कैसी होती है? ऐसे होती है एफ एन एक्स. इसमें कैसे एलिमेंट होते हैं? इसमें होते हैं f1, f2, f3 एंड सो. जैसे मान लो एफ एन एक्स आपने ले लिया एक्स टू द पावर एन. तो f1 क्या हो गया? f1 हो गया x, f2 हो गया एक्स स्क्वायर एंड f3 हो गया आपका एक्स क्यूब एंड सो. समझ में आ गई बात यहाँ तक? कोई क्वेश्चन है तो पूछो. ठीक है, तो ये फंक्शंस का है. अब जैसे हम मान लो x की वैल्यू 0 लेते हैं, तो हमारी जो सीक्वेंस है वो क्या बन जाती है? f1 की वैल्यू आ गई 0, f2 की वैल्यू भी आ गई 0 एंड सो ऑन. ठीक है, तो हमारे पास सीक्वेंस बन गई x इक्वल टू 0 के लिए 0 0 0 एंड. तो ये किस पे कन्वर्ज करेगी? बताओ जिसने पढ़ा है. 0 पे. वेरी गुड. अब अगर मैं x इक्वल टू 1/2 लेता हूँ, तो हमारे पास आ गया f1 इज इक्वल टू 1/2, f2 इज इक्वल टू 1/4, f3 इज इक्वल टू 1/8 एंड सो ऑन. तो हमारे पास सीक्वेंस बन गई 1/2, 1/4, 1/8 एंड सो ऑन. बताओ ये किस पे कन्वर्ज होगी? 0 पे. वेरी गुड. अब x इक्वल टू हमने 1 ले दिया, तो क्या आया? f1 इज इक्वल टू 1, f2 इज इक्वल टू 1, f3 इज इक्वल टू 1 एंड सो ऑन. तो इससे हमें सीक्वेंस मिल गई 1 1 1 एंड सो ऑन. ये किस पे कन्वर्ज होगी? 1 पे. बिल्कुल सही. तो इस तरीके से ये पूरा क्राइटेरिया. इसको ध्यान से समझो, कोई डाउट है तो पूछो. उसके लिए आप ब्लॉक 2 वाली जो वीडियो है वो देखो. और पूछिए. चलिए ठीक है. तो ये इन्होंने जो मैंने अभी आपको करके दिखाया वही चीज इन्होंने यहाँ पे करके दिखाई है. एग्जाम्पल नंबर 1. देखो क्या. फॉर द गिवन सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस ऑन आर, फाइंड द सीक्वेंस एफ एन एक्स ऑफ रियल नंबर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू गिवन अगेंस्ट इट. ठीक है, तो इन्होंने एफ एन एक्स इज इक्वल टू दे दिया एक्स अपॉन एन, और x इक्वल टू 1 0 एंड 1/3. ये तीन वैल्यू दे दी बस. तो अब आपको क्या निकाल के दिखाना है? x जैसे मैंने आपको अलग अलग वैल्यूज पे निकाल के दिखाई है सीक्वेंस की फंक्शंस. आपको भी वही करना है. देखो सॉल्यूशन में क्या. x इक्वल टू 1 के लिए f1 इज इक्वल टू 1, f2 इज इक्वल टू 1/2, f3 इज इक्वल टू 1/3 एंड सो ऑन. समझ में आया ये x इक्वल टू 1 के लिए कैसे आया? नहीं आया होगा. ध्यान से देखो यहाँ पर. यहाँ पे दो वैल्यूज हैं. एग्जाम्पल नंबर 1 जो लिखा है उसमें फर्स्ट पार्ट में x और n दो वैल्यू हैं. ठीक है, जैसे ही आप लिखते हो सॉल्यूशन में, आप देखो लिखा है 4x इक्वल टू 1. जैसे ही आपने 4x इक्वल टू 1 लिखा है, तो आपका एफ एन एक्स क्या हो गया? 1/n. बिल्कुल सही.
एफ एन एक्स हो गया आपका 1/n, तब आपने n की वैल्यू 1 2 3 रखनी शुरू करी, उसके बाद आपको ये सीक्वेंस मिल गया। जिसको नहीं समझ में आया वो पूछो, क्योंकि इन्होंने आंसर दे दिया तो इनको समझ में आ गया है। मैं ज्यूम करूंगा कि सबको आ गया, वरना नहीं आया तो क्वेश्चन पूछिए। हम्म। नहीं, हमने कब कहा ये 1/n पे लाई हो रहा है? कहाँ लिखा है ये कि ये 1/n पे कन्वर्ज हो रहा है? ये तो यहाँ लिखा ही नहीं है। ये तो इन्होंने क्या किया है, जो 1 1/2 1/3 1/n आया है उसको एक सीक्वेंस के रूप में लिख दिया है इन सबको मिला के। समझे? ठीक है। कन्वर्ज ये जीरो पे ही होगा, लेकिन वो चीज़ यहाँ पर इन्होंने डिस्कस ही नहीं करी। इन्होंने सिर्फ ये कहा है कि एक सीक्वेंस है एफ एन एक्स, तो आपको F1 F2 F3 की वैल्यू बताओ। ठीक है, ध्यान से समझो क्या इन्होंने कहा है, फिर से मैं बताता हूँ। इन्होंने ये दे दिया कि एफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एन। ठीक है। अब उन्होंने ये कह दिया एक्स इक्वल टू, तीन वैल्यू है, 1 0 1/3, 1 0 1/3, इन तीनों वैल्यू के लिए आप F1 F2 F3 एंड सो ऑन फाइंड आउट करके हमें बताओ। तो वो चीज़ यहाँ पर है, जैसे आपने x इक्वल टू 1 के लिए लिया तो आपका एफ एन एक्स क्या हो गया, एफ एन एक्स हो गया 1/n, और 1/n हो गया तो इससे हमारे पास F1 इक्वल टू आ गया 1, F2 इज इक्वल टू आ गया 1/2, F3 इज इक्वल टू हो गया 1/n, सॉरी 1/3 एंड सो ऑन। तो दैट मीन्स हमें जो सीक्वेंस थी x इक्वल टू 1 के लिए ही एफ एन एक्स, वो सीक्वेंस क्या मिल गया हमें, 1 1/2 1/3 एंड सो ऑन। और इस सीक्वेंस को आप क्या लिख सकते हो, 1/n, जिसे उन्होंने इस तरीके से लिखा हुआ है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आप समझ में आई बात? तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी है। जिस तरीके से ये निकाला x इक्वल टू 1 के लिए, वही x इक्वल टू 0 के लिए निकाला, उसी तरीके से x इक्वल टू 1/3 के लिए निकाला। ठीक है। बिल्कुल सेम वे में एफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n के लिए, n x की वैल्यूज के लिए बिल्कुल सेम वे में ये इन्होंने निकाला होगा। ठीक है, देखो x इक्वल टू 0 के लिए निकाला, फिर x इक्वल टू 1/3 के निकाला, फिर यहाँ पर उसी तरीके से जैसे मैंने वो एक किया है बिल्कुल सेम वे में ये सब होगा। ठीक है, एक करके देखो आप, अपनी अपने आप करके देखो कौन सा करोगे। हम्म, ये वाला कर लो, सेकंड वाला करो, एफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, और ये x इक्वल टू 1 के लिए करके देखो, F1 की क्या वैल्यू आती है, F2 की वैल्यू क्या आती है एंड सो ऑन। ठीक, करके देखो इसके लिए मुझे बताओ, जिसने भी एक बार कर लिया पहले, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। जी बताइए। दैट मीन्स सॉल्यूशन क्या है, 1/1 फैक्टोरियल मतलब 1। ठीक है। ठीक है। हम्म। हाँ वेरी गुड, डॉट डॉट डॉट, यही है, बिल्कुल सही। तो जनरली अगर मैं पूछूं तो जनरली आपका एफ एन एक्स इज इक्वल टू आ गया 1/n फैक्टोरियल।
ठीक है, तो सबको देखो, इनको समझ में आ गया तो आप सभी को भी मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया, और फिर भी अगर किसी को नहीं आया तो बेटा क्वेश्चन आपको ही पूछना पड़ेगा। देखो ये लिख रहा, टोटल सीक्वेंस इज 1/n फैक्टर। तो यहाँ पर पॉइंट क्या है नोटेट करने वाला, कि x की एक वैल्यूज के लिए हम एक सीक्वेंस मिल ले रहे हैं। ब्लॉक 2 में जो हमने सीक्वेंस पढ़ी थी बहुत सारी, यहाँ पर हम उसका जनरलाइजेशन पढ़ रहे हैं। तो जब जैसे ही यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है उसमें हमें x की वैल्यू रखते हैं तो हमें एक सीक्वेंस मिल जाती है, और वो सीक्वेंस हमने कहाँ पढ़ी है, ब्लॉक 2 में पढ़ी है। ठीक है, तो इस तरीके से x की हर एक वैल्यू के लिए हमें एक सीक्वेंस मिल जाती है, x की हर एक वैल्यू के लिए हमें एक सीक्वेंस मिल जाती है जो ब्लॉक 2 में हमने पढ़ी। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नाउ you have realized that when a sequence of function is given by evaluating each of the function at the given point of the domain, we get a sequence of real numbers. We can then decide whether this sequence is convergent or divergent. ठीक है, अब हमने x की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए सीक्वेंस ले ली। अब वो पर्टिकुलर सीक्वेंस x की एक वैल्यू के लिए जो हमने सीक्वेंस मिली है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, वो आप लोग इजीली निकाल सकते हो बाय द हेल्प ऑफ ब्लॉक 2, जो आप लोग पढ़ चुके हो। लेकिन यहाँ हमें क्या करना है, हमें चाहिए कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, सबका एक साथ। तो वो कैसे करेंगे, वो यहाँ पर है। लेट अस गो बैक टू द एग्जांपल ऑफ द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन x f n x इज इक्वल टू x टू द पावर n डिस्कस्ड एट द बिगिनिंग। Here at x equal to 0, fn x is equal to 0 for all n. Therefore, limit n tends to infinity, fn x fn 0 is equal to 0. Similarly, at x equal to 1, fn1 is equal to 1 for all n. Therefore, limit n tends to infinity, fn1 is equal to 1. But if x is between 0 to 1, fn x is equal to x to the power n, or this goes converts to 0 as n tends to infinity, as we have seen already for x equal to 1 by 2. So we define a function f from 0 1 to r such that fx is equal to 0 when x is between 0 to 1 and 1 when x equal to 1. Then we can say fn x converts pointwise to f on 0 1 or for each point of 0 1. In this case, we say the sequence of function is pointwise convergent in the domain. Here is the precise definition. देखो क्या लिखा है इन्होंने, समझ में आया कुछ मैंने बोला, नहीं बोला, समझ में आया ना? देखो थोड़ा थोड़ा अब पूरा समझ में आएगा। इन्होंने दे दिया एफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब और जहाँ पर x किसको बिलोंग करता है, x बिलोंग्स करता है इंटरवल 0 to 1। हमने क्या किया था याद करो, ब्लॉक 2 में 1/n एक सीक्वेंस थी, उसको देखा था कि ये 0 पे कन्वर्ट होती है। उसी तरीके से अब हमारे पास जो सीक्वेंस है वो एफ एन एक्स है। अब हमें ये चेक करना है कि ये किस पे कन्वर्ज, अब ये जिस पे भी कन्वर्ज होगी वो कोई एक फंक्शन पे तो कन्वर्ज होगी, ये तो पता ही है आपको। अब फंक्शन हमें वो फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे, अब देखो x इक्वल टू अगर मैं 0 लेता हूँ तो हमारा जो एफ एन है वो क्या निकल के आता है, 0 है। तो दैट मीन्स यहाँ क्या हो गया आपका, एफ वन इज इक्वल टू 0, f2 इज इक्वल टू 0 एंड सो ऑन। तो ये किस पे कन्वर्ज हो रही है, x इक्वल टू 0 के लिए 0 पर। वेरी गुड। अब x की वैल्यू अगर मैं 0 और 1 के बीच में ले दूं, एफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, तो f1 हमारे पास हो गया x, f2 हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये किस पे कन्वर्ज होगी, 0 पर। जिसको ये पॉइंट समझ में नहीं आया वो पूछ लो। बिल्कुल सही बोला उन्होंने, 0 पर। चेक करते हैं, बताओ इस स्टेटमेंट को चेक करते हैं, बताओ किस वैल्यू पे आपको चेक करना है कि ये 0 से 1 के बीच में है।
0.1 यानी कि 1/10। ठीक है, तो हम लेते हैं 1/10, तो एफ एन एक्स हमारा क्या हो गया, इज इक्वल टू 1/10 टू द पावर n। ये हो गया, निकालते हैं। F1 इज इक्वल टू 1/10, F2 इज इक्वल टू 1/10 स्क्वायर यानी 1/100, F3 इज इक्वल टू 1/10 क्यूब यानी 1000। तो सीक्वेंस क्या बनी हमारे पास, सीक्वेंस हमारे पास बनी 1/10, 1/100, 1/1000 एंड सो ऑन। अब बताओ ये किस पे कन्वर्ज हो रही है, जीरो पर। आगे समझ में, और x की आप कोई भी वैल्यू ले लो, 0 से 1 के बीच में कोई भी इनफाइनाइट वैल्यूज है, आपका मैंने कुछ भी ले लो और इस तरीके से सीक्वेंस बना के देख लो, वो डेफिनेटली जीरो पे ही कन्वर्ट। ठीक है, ये तो हमारा जीरो हो गया, 0 से 1 हो गया। अब x इक्वल टू 1 पर देखते हैं, तो एफ एन क्या हो गया हमारे पास, 1 टू द पावर n यानी कि 1। तो F1 भी हमारा 1 हो गया, F2 भी हमारा 1 हो गया, और F3 भी हमारा 1 हो गया एंड सो ऑन। तो ये किस पर कन्वर्ज होगी, 1 पर। तो ये, हाँ, तो ये सब रिजल्ट हमारे पास आ गए। तो इन रिजल्ट्स की हेल्प से मैंने एक नया फंक्शन बना दिया एफ एक्स। कैसे बना दिया, ये देखो जीरो वैल्यूज हैं यहाँ पर। कब, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो बट लेस देन 1 हो, और वैल्यू है 1। 1 कब कब, जब x, सॉरी, जब x इज इक्वल टू 1। तो मैंने एक नया फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर दिया, ये वाला। समझ में आ गई बात। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि जो इन्होंने हमें फंक्शन दिया है एफ एन एक्स, ये कन्वर्ज करता है एफ एक्स पर फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू 0 to 1। डाउट पूछो। तो मैंने आपको लास्ट सेंटेंस मतलब कौन से वाला, ये एफ एक्स कंस्ट्रक्ट कैसे हुआ या कन्वर्ज कैसे हुआ, आगे समझ में। चलो अच्छी बात है, और बताओ। हाँ, आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आया, यहाँ पर लास्ट में दो लाइन लिखी है, एफ एक्स हमने कंस्ट्रक्ट किया है और फिर बोल दिया कि एफ एन एक्स कन्वर्ज करता है एफ एक्स पर। तो कौन सी लाइन समझ में नहीं आई, या दोनों ही समझ में नहीं आई, कन्वर्ज करता है वाला। देख, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं हम, किसी भी फंक्शन का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। तो जब यहाँ पर आपने x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पर यहाँ पर देखा कि ये किस पे कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो ये वाली वैल्यूज होती हैं वो हम लोग यहाँ पर इस पोजीशन पे लिखते हैं, और जो यहाँ वाली वैल्यूज होती हैं वो हम इस पोजीशन पे लिखते हैं। देखो x इक्वल टू जीरो के लिए वैल्यू है जीरो, एक्स जीरो और 1 के बीच में वैल्यू है जीरो, तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया कि x जब 0 और 1 के बीच में हो तो वैल्यू हमारी जीरो है। x=1 के लिए वैल्यू आई 1, वही यहाँ लिख दिया हमने, x=1 के लिए वैल्यू 1 है। ठीक है, समझ में आ गया कैसे कंस्ट्रक्ट किया। अब जो इस तरीके से हम फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते हैं वो, क्योंकि आपने यहाँ देखा कि x की अलग अलग वैल्यूज पर फंक्शन से जो हमें सीक्वेंस मिल रही है वो कन्वर्ज कर रही है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है इस फंक्शन का, तो इससे हम कह सकते हैं इस कंस्ट्रक्शन से कि ये जो हमारा गिवन सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करेगा इस पर, x की डिफरेंट वैल्यू आप रख के देख लो, 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू आप रख के देखो। मान लो आप 1/2 रख रहे हो, तो 1/f(n)x 1/2 से क्या सीक्वेंस बनाएगा, 1/2, 1/4, 1/8 एंड सो ऑन। ठीक, और देखो x=1/2 पे क्या वैल्यू है, जीरो। तो जो आपने सीक्वेंस बनाई 1/2, 1/4, 1/8, वो जीरो पे कन्वर्ज करनी चाहिए, जो कि करती है। समझ में आया। आपने वो पढ़ा था सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, ब्लॉक 2 पढ़ा है, पढ़ा है आपने ब्लॉक 2।
मिस हो गया था ना, तो इसीलिए आपका ये क्वेश्चन है, एक बार उसकी वीडियो देख लेना। हाँ बोलो। ठीक है, तो वही क्लियर होगी ये बात। चलिए, तो यही चीज़ यहाँ पर डेफिनेशंस में लिखी है जो अभी आपको समझाई गई है। उसमें क्या है, लेट एफ एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन ए सबसेट ए ऑफ आर। We say sequence fnx converts pointwise to a function f on A if for each x belongs to A the sequence fnx converts to fx। देखो वही लिखा है ना, समझ में आई डेफिनेशन। देख fnx कोई फंक्शन है, ये कन्वर्ज करता है f पर, कन्वर्जिस टू f अगर x फॉर ईच x बिलोंग्स टू A, x की अलग अलग वैल्यूज पर। ठीक है, यही लिखा है ना, fnx है हमारा, ये हमारा एफ एन एक्स है, ये कन्वर्स करता है एफ एक्स पर एक्स की डिफरेंट वैल्यूज के लिए। समझ में आ गई बात, यही चीज लिखी है। बोलो। ठीक है, और इस कन्वर्जेंस को हम बोलते हैं यहाँ पर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। याद रखना, कन्वर्जेंस नहीं बोलेंगे हम, इसको बोल देंगे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। क्यों? क्योंकि एक्स के डिफरेंट पॉइंट्स पर हमने कन्वर्जेंस चेक की है, इस वजह। एग्जाम्पल नंबर 2 भी सेम है। फाइंड द पॉइंट वाइज लिमिट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। एफ एन एक्स दिया हुआ है आपका एक्स बाई एन। देखो, एफ एन एक्स इज गिवन टू यू एक्स बाई एन, और एक्स किसको बिलोंग कर रहा है यहाँ पर, जीरो टू इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल जीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब आप बताओ मुझे, आप इसमें से एक्स की कोई भी एक वैल्यू ले लो। ठीक है, आप बताओ, ये सोच के बताना, उसमें से सॉल्यूशन में से देख के मत बताना। ठीक है, सोचो इसके बारे में। कैसे करोगे इसको? हम्म बेटा पहले तो आप ये समझो, यहाँ ओपन इंटरवल लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है? तो ओपन इंटरवल में आप इंफिनिटी तो रख ही नहीं सकते। अगर क्लोज इंटरवल होता तो आप रख सकते थे। हाँ, इन्फिनिटिव नहीं है, इन्फिनिटिव से छोटा कोई भी फाइनाइट वैल्यू। और पूछिए, आप बताओ मुझे। x इक्वल टू जीरो नहीं है, x इक्वल टू जीरो से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा। सपोज मैं x इक्वल टू वन ले लेता हूँ, तो हमारे पास एफ एन एक्स क्या आ गया, वन बाई एन आ गया। अब इससे निकालो सीक्वेंस क्या बनी आपके पास, एन इक्वल टू एफ वन क्या बना, एफ वन इज इक्वल टू वन, एफ टू इज इक्वल टू वन बाई टू, एफ थ्री इज इक्वल टू वन बाई थ्री। तो डॉट 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 ये किस पे कन्वर्ज हो रही है, जीरो पर। इसी तरह आप x की कोई भी वैल्यू ले लो, मान लो आपने x इक्वल टू थाउजेंड ले ली। ठीक है, तो एफ एन एक्स क्या हो गया, एफ एन एक्स हो गया थाउजेंड बाई एन। तो एफ वन क्या हो गया, एफ वन हो गया वन अपॉन, सॉरी थाउजेंड अपॉन एन, एन की वैल्यू वन। एफ टू इज इक्वल टू थाउजेंड अपॉन टू, फिर थाउजेंड, हाँ एफ थ्री इज इक्वल टू थाउजेंड अपॉन थ्री, एंड सो ऑन। तो ये सीक्वेंस क्या बन गई आपकी, थाउजेंड, थाउजेंड अपॉन टू, थाउजेंड अपॉन थ्री, एंड सो ऑन
इसमें से आपने क्या करा, 1000 कॉमन ले दिया, तो क्या बचा 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस किस पे कन्वर्ज कर रही है, जीरो पर। तो था जीरो को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जीरो। तो यानी कि 1000 के लिए भी ये जीरो पे कन्वर्ज कर रही है। इसी तरह आप 1 करोड़ ले लोगे तो भी जीरो पे कन्वर्ज करेगी। तो x की किसी भी वैल्यू के लिए ये जीरो पे कन्वर्ज कर रही है। तो अब आप मुझे बताओ, मैं f फंक्शन मुझे बनाना है, अब कंस्ट्रक्ट करेंगे हम फंक्शन। तो बताओ इस क्या फंक्शन कंस्ट्रक्ट करेंगे हम, बताओ, कंस्ट्रक्ट करो फंक्शन। नहीं, ओपन इंटरवल x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। वेरी गुड। तो बस यही आपने बिल्कुल सही बताया। तो एफ एन एक्स किस पे कन्वर्ज हो गया हमारा, यहाँ पर एफ एक्स पे। तो ये और कैसे कन्वर्जेंस को हम कौन क्या बोलते हैं, पॉइंट वाइज। समझ में आ गया सबको। तो बस यही चीज़ यहाँ पर लिखी है। इसी तरह सेकंड वाला है, सेम टू सेम, वो आप कर लेना। देखो इन्होंने दिखाया किस तरीके से वो जीरो की तरफ कन्वर्ज हो रहा है। लो, वो इस तरह भी दिखाने को मिल गया आपको, अच्छा है। आपने कैसे ये कन्वर्ज हो रहा है, हम्म, ये इस तरीके से कन्वर्ज हो रहा है आपका। आपने जैसे x इक्वल टू मान लो जीरो लेते हैं, जीरो तो नहीं, जैसे आपने वन लिया, 1/n। तो आपका जो सीक्वेंस बना, बताऊंगा तो ये, चलो मैं आपको डिटेल नहीं बता के थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ये इस तरीके से हो रहा है, जैसे एक ये बना आपका फंक्शन, ये आपका f1 हो गया। फिर जो आपने f2 निकाला वो ये हो गया f2। इसी तरह ये f3 हो गया। फिर ये f4 हो गया। इसी तरह वो नीचे जाता जा रहा है ना। और फाइनली क्या आ जाएगा, ये वाली एक्स एक्सिस पे आ जाएगा या नहीं आएगा। तो वही चीज़ ये है। तो जो एक्स एक्सिस पे आ रहा है तो वो जीरो पे कन्वर्ट, ग्राफिकली यही है। ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा ग्राफ बना के समझाता हूँ। ये इस तरीके से काम कर रहा है, जैसे आपने F1 निकाला तो ये आपका F1 हो गया। फिर F2 निकाला तो ये आपका F2 हो गया। फिर आप इसी तरह F3 करेंगे तो ये आपका F3 हो जाएगा। और इसी तरह बढ़ते 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 ये क्या बन जाएगा आपका, फाइनली ये जाएगा नीचे इस पर, इस वाले एक्स एक्सिस पे चला जाएगा ये। और ये हमारा एफ हो जाएगा। तो हमने दिखा दिया कि F1 F2 F3 जो हमें सीक्वेंस है वो किस पे कन्वर्ज हो रही है, एफ पे कन्वर्ज हो रही है। अब समझ में आ गया, समझ। वही चीज़ यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है। वही सेम चीज़ है, F1 F2 F3 वही। तो ये कन्वर्जेंस जो हम बोलते हैं इसको बोलते हैं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। पॉइंट वाइज लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट टू बी कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इन्होंने डेफिनेशन, a sequence of function fn converges pointwise to f on its domain if for epsilon, फिर epsilon आ गया, given epsilon greater than 0 for every f in domain, there exists a natural number n such that fnx minus fx less than epsilon for all n greater than equal to n। तो जिन्होंने ब्लॉक 2 किया है उनकी, उन्हें याद होगा, याद होना चाहिए, सीक्वेंस की एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन थी। जैसे सीक्वेंस था कोई, किससे हमने डिनोट करना था, ए एन से, और वो कन्वर्ज कर रहा है ए पर। तो हमारी सीक्वेंस का क्या था, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच, सॉरी, देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर n greater than 0 such that an minus a less than epsilon for all
n ग्रेटर देन इक्वल टू n। ये डेफिनेशन हमने वहाँ ब्लॉक 2 में पढ़ी थी। तो सेम डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ पर क्या हो गया, एफ एन एक्स, ये किस पे कन्वर्ट कर रहा है पॉइंट वाइज, एफ एक्स पर। तो फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर greater than 0 such that fnx minus fx less than epsilon for all n greater than equal to natural number। क्लियर, सेम डेफिनेशन लिखी हुई है, यही यहाँ लिखा है। फॉर n greater than equal to n implies fnx minus fx less than epsilon। Let us consider the functions fnx is equal to x to the power n, where x belongs to 0 to 1, we know that fnx converges to the function f given by this। ये सब पढ़ लेना, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के थ्रू प्रूव करना। आगे आया यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। पढ़ो इसको, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस पढ़ो आप अच्छी तरीके से, है ना। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हम कल डिस्कस करते हैं। ओके।